ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ रुद्रपुर ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਦਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੇੜ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੀਠੇ ਕੌੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਰ। ਵੈਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਅਸਾੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾੜ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਵਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਾਦੋਂ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਭਾਦਰੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੁਣ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੂ, ਕੱਲਾ ਅਸੂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾੜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਬਲ ਬਿਸਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਓਵਰਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਪੱਧਤੀ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਝੁਲਸਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਲੱਕੜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇੜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ
गर्मी वाला, लूआं वाला, तपश वाला महसूस होता है। हाँ जी। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। जिस व्यक्ति ने जगत नूं जीवन देण वाला परमात्मा छड़ दिता है ते आस ये रख लई कि बंदे मैनू जीवन दान देणगे, बंदे मेरी परवरिश करनगे, प्रतिपालना करनगे, बंदे मेरी मदद करनगे। ये उन्हां मनुखां दी निशानी है। हर नाहा ना जिन्हां पास, जिन्हां कोले रब वर्गा पति नहीं। की निशानी है जी? निशानी ये कि उन्होंने जगत नूं जीवन देण वाला पति परमात्मा ते छड़ दिता है ते बंदियां दी आस कर लई। अज भी साडे विच बड़े लोग ने जिहड़े बंदे ते भरोसा करते हैं, भावें वो बंदा पिता दे रूप विच होवे, माता दे रूप विच होवे, पुत्र दे रूप विच होवे, भैन भरा दे रूप विच होवे, दोस्त मित्र दे रूप विच होवे, किसी नौकर चाकर दे रूप विच होवे। शायद सानू नहीं पता कि बंदे तो खतरनाक इस धरती ते रब ने कोई जूनी पैदा नहीं की। कदे सुने किसी जानवर ने लखां करोड़ां बंदे मार दिते होण? ना, बंदा मार दिंदा है। जानवर मारेगा भी तो सिर्फ अपने पखंड तक। मैं तो रोज इत्थे बेनती करदा कि अमूमन सच ये है कि सप किसी नूं डसदा नहीं है जिन्ना चिर असीं उहदी पूछ ते पैर नहीं रखांगे, उहदी पूछल ते। जिन्ना चिर सुते सप नूं असीं ठुड्डा नहीं मारांगे, वो तुहानूं डंग नहीं मारेगा। असीं जदों खेतीबाड़ी करदे सी ना ते पहला पाठ ही ये पढ़ाया जाता सी, कहना पुत जे सप सुता होवे ते कोलों लंघ जाओ, कुछ नहीं कहेगा। ये गल्लां तुसीं भी सुनिया होणगियां, सुता शेर ते सुता सप किसी नूं कुछ नहीं कहंदा। पर सुते बच्चे नूं, सुते सप नूं, सुते शेर नूं जगाउणा ये बड़ा खतरनाक है। बच्चा भी सुता है तो भावें सारे घर के काम कर लो, पर जे तुसी कच्ची नींद उठा लिया ना फिर तुहाडे तो कंट्रोल नहीं होएगा। सप की भी यही हालत है। पिया है पिया रहन दो रस्ते ते, तुहानूं की कहंदा है? कुछ नहीं कहंदा। हाँ, ये जरूर चेता रखना कि जे तुसी सप नूं मारन लगोगे वो बच गया। मैं पहला भी बेनती की है, उसे जगह ते वो तुहानूं कई वारी लभण आएगा मुड़ के। तुसी सप नूं डांग मारी, कई मारी, कुहाड़ी मारी, सोटी मारी, वो बच गया। वो उस तो बाद तुहानूं उसे जगह ते कई वारी लभण आएगा बदला लैण वास्ते। बंदे तो खतरनाक इस धरती ते कोई जाति नहीं है, कोई जूनी नहीं है। हाँ, इहदा चंगा पक्ष यह है कि इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनिहारी, कि तू 84 लाख जूना का सरदार है ते सारियां जूना तेरियां पानी हार ने। पर इहदा दूसरा पक्ष भी है, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ये जाति मनुख वाली है, पर इहदी करतूत मनुख वाली नहीं है, पशुआं वाली है। बंदा ठग भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, ये संभव है। जिन्हां ने जगत नूं जीवन देण वाला रब छड्ड दिता है। रब किहो जिहा है? गुरबाणी पढ़ो, तुहानूं बार बार सतगुरु कहंदे ने मां वर्गा है। दुनिया दे विच कदे नहीं मन्निया जांदा कि मां बच्चे नूं जहर दे सकदी, हालांकि हुंदा है। अज दे समय च ये घटनावां आम ने।
कि माँ ने दूजी शादी करने वास्ते, माँ ने कोई माड़ा कर्म करने वास्ते बच्चे नहर च सुट दिते, किसी व्यक्ति नाल मिल के बच्चे मरवा दिते या बच्चे छड़ दिते। ये अजकल आम है। अगे पहली गल तो डाइवोर्स होंदे नहीं सी, होंदे सी ते औरत दी पहली मंग हुंदी सी कि मैनू बच्चे दे दिओ, मैं इन्हां दी पालना करदिआं दिन कट लांगी। पर अजे हुंदी भी नहीं, बच्चे तप्पे पाओ प्यो दे खाते च, ते स्त्री नूं इह हुंदा भी मैं दूजा विआह कर सकां। ते प्यो की हालत उदों भी माड़ी हुंदी है, वो कहंदे माँ के खाते च पाओ ताकि मैं छेती डोला घर लिया सका। भाई गुरदास ने बड़िया उदाहरण दित्तियां ने। जे माँ पुत्तै विस दे कौन रखण हारा, माँ ही बच्चे नूं जहर देवे ते कौन बचा सकता है। दुनिया दे विच माँ तो सेफ बंदे वास्ते कोई थां नहीं। और तुसी वेख्या होएगा सब तो पहला बच्चा माँ कहंदा है, ते दुख दी हर औखी घड़ी विच भी वो माँ ही कहंदा है। डेथ बैड ते भी उहदे मूँह तो माँ ही निकलदा है, पिता नहीं निकलदा। एक माँ जिहड़ी है जिन्हें सिर ते हथ रखना सी, जिन्हें रोटी रोजी देनी सी, ते जिन्हें वो माँ घरों कढ़ दिती। हुण वो सोचे कि माँ नूं घरों कढ़ के ते मैं पत्नी दे नाल रह के मैं दुनिया दे सारे सुख हासिल कर सकदा, इस तो वड्डा भुलेखा किसी बंदे नूं नहीं होना चाहिए। मैं सवेरे भी बेनती की सी, गल रजनीश ने लिखी है कि औरत जदों मां का रूप धारण करदी ते सिर ते हथ रख के कहती, पुत्रा घबरावी ना, पोचे भी मार लवांगी, झाड़ू भी मार लवांगी, लोकां दे कपड़े भी धो लवांगी, भांडे भी मांज लवांगी, पर पुत्रा मैं तेरियां लोड़ां पूरियां करांगी, मैं तेनूं पढ़ावांगी। वही औरत जदों पत्नी बनती है तो पहली गल कहती भी जे तेरे कोले खर्चा ही नहीं सी, जे तू मैनू रख ही नहीं सकता सी, जे तेरे कोल घर चलाउण जोगी समर्था नहीं सी, ते सेहरे बन्नण दा चाह तेनू किन्ने दस्सिया सी? तेनू किन्ने सलाह दी सी घोड़ी चढ़ के मैनू विआहण आ जा? पत्नी दे रूप विच रजनीश कहंदा कि पत्नी वो है जिहड़ी तुहाडी जेब विच हथ पाउंदी है कि मैनू रखण जोगे पैसे हैगे ने, तेरे कोले खर्चा है। पर वही स्त्री जदों मां बण जाती है तो कदे बच्चे की जेब विच हाथ नहीं पाउंदी, हथ सिर ते रखती है। कदे बच्चे नूं तकलीफ होवे, एक मां ही है जिहड़ी कहंदी है पुत मैं मर जा, तैनूं दुख क्यों आया? कदे सुनिया किसी ने घर वाली कोलों कि घर वाला बीमार होवे ते कहे भी मैं मर जा, तुसीं ठीक हो जाओ? बहुत रेर होएगा किते। इस करके जिस रब ने जगत जीवन देना सी, जिवें मां छड्ड के आपां कहीए कि मां तो बगैर कोई होर सखा संबंधी कोई मेरी मदद कर सकता है, ये भुलेखा है। रब तो बिना कौन करेगा? रब तो बिना जिन्नी दुनिया तेरे आले दुआले है, बंदिया ये चेता रखी, ये संसारे के कुटुंब जो मित्र भाई दीसै मन मेरे, ते सब अपने स्वाए मलासा। ये लोग अपने स्वार्थ करके तेरे नेड़े आए ने, क्योंकि इन्हां दे काम निकलते हैं तेरे कोलों, इन्हां दा मतलब हल हुंदा है, इन्हां दे स्वार्थ पूरे हुंदे ने तेरे कोलों। जिन्हां व्यक्तियां ने जगत दे जीवन देण वाले रब नूं छड्ड दिता, मनुखां दी आस कीती है, उन्हां दी निशानी ये कि उन्हां नूं ये महीना बड़ा तपश वाला लगेगा। असाड़ तपंदा तिस लगै, हर नाहा न जिन्ना पास। ये निशानी है कि इन्हां कोल रब नहीं, क्योंकि वो बंदे बंदे मगर तुरे फिरदे ने। सतगुर
ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। दाता ओ ना मंगी है फिर मंगण जाइए, होछा छा ना की चई फिर पछोताई है। घरों तुरन लग्या एक गल का ध्यान करी, उत्थे ना जावी मंगण जिथों अगों पता लगे वो कहे जी मेरे कोल ते है ही कुछ नहीं, तो मुड़ के तेनों एक घर होर लभना पवे। मैं बड़ी बारी आप जी नूं उस गल की सांझ पाई। मैं छोटा जिहा सी, उदों 100 रुपये की बड़ी कीमत सी। सवेरे उठिया ही होवांगा मैं, बच्चे लेट उठते ने, माँ ने 100 रुपया दिता, कहती पुत तुड़ा के लिया। मैनूं याद है कि उदों अगर बंदा दिहाड़ी ते लियाईदा सी ना, पूरे 8 10 12 घंटे 8 घंटे तो हुण शुरू होए ने, अगे 10 12 घंटे मजदूर काम करदा सी ते उहनूं दिहाड़ी देईदी सी 5 7 रुपये। हुण मैं हट्टी ते गया, मैं कहा जी 100 रुपया खुला चाहिए। तुसी यकीन करना, उन्हें मेरे को 100 रुपया फड़िया, सीधा किया, मत्थे नूं लाया, गले च रखिया। आ तजोरियां तो हुण आईयां ने, लकड़ दे गले हुंदे सी, गला बंद किया, फिर नोट कढ़िया ते मैनूं फड़ा के कहंदा नहीं खुले नहीं है। तो मैं क्या कीता की है? कहता लक्ष्मी मत्थे लगी है, गले च तो रखनी चाहिए है। कहता लक्ष्मी मत्थे लगी है, शायद सानू कदे गल समझ आ सके। गल की सी भी, उहदे कोल है ही नहीं। वो कहता मैं वेख्या ही नहीं 100 का नोट। भी जदों की हट्टी खोली सवेर दी, मैं 100 का नोट मेरे मत्थे नहीं लगा। तो कहता मत्थे लगा तो मत्था तो टेक लवां। हुण ऐसे व्यक्ति कोल तुसी चले जाओ जिहड़ा तुहाडे जांदिआं नूं कहे, अमूमन की हुंदा है, ये गुरु की बाणी च लिखिआ है, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया। तुसी गल शुरू करो, मैं शुरू करा, खास करके भैणां जदों शुरू कर दियां ने, भैण जी असीं ते बड़े ही औखे आ, तो अगों भैण जी पता की आंदी है, ना भैणे अपने दुख फोल, असीं ते बड़े ही औखे हैं, तुहाडे तो भी औखे हैं। फिर ऐ पता लगता भी 2 दुखियारे इकट्ठे होए ने। सतगुरु कहते ने दाता ओ मंगो, उस घर मंगण जाओ जिथों मुड़ के दूजे घर मंगण ना जाना पवे। तैसा दर किथे हो सकता है, ऐसा घर केड़ा हो सकता है? सतगुरु रोज कहते ने, साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरे, घर तो तेरे सब किश है, जिस देहे सो पावे। वो सच्चे साहिब का घर है जिथे सब कुछ है। नहीं तो दुनिया च किते भी जाओगे सब कुछ किते भी नहीं है। पवन देवते कोले जाओगे तो अगन नहीं मिलेगी, अगन देवते कोलों जल मंगोगे तो कहेगा भरावा मेरे कोल नहीं हैगा। जल देवते कोल जाओगे तो कहेगा भी मेरे को पवन नहीं हैगी। वो कौन है जिदे कोल सारिया चीज़ां ने, जिदे हुक्म में चंद्रमा भी है, सूरज भी है, धरती भी है, पानी भी है, दरिया भी ने, समुंदर भी है, अग्नि भी है। वो कौन है? भै विच अगन कढ़े बेगार, किदे डर विच अग तुहाडे घर चुल्हे विच बलदी ते रोटियां पकाउंदी है। ऐसे रब नूं छड्डिओ ना। अगर तुसी मानस संधि आस करोगे तो अषाढ़ का महीना बड़ा तपश वाला हो जाएगा। दुए भाए बगुचीए गल पही अस जम की फास। ये जेड़ा दोये शब्द है ना, इहदा अर्थ है रब कौन है? प्यार दी मूरत है।
ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ राम रे। जेह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम वहां तक संग तोसा। बंदिया जेह मार्ग ए जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। जिस रस्ते तू कल्ले जाना है, जिन्ने मर्जी संबंधी इकट्ठे कर लो, अर्थ ही कोई निकलना है कि जदों काढो काढो होई दा आवाजा आवेगा ना, तो फिर की होएगा। कहंदे देहरी तक मां रोवेगी, पत्नी रोवेगी, ते खटिया ले गए भाई, अर्थी चुक के भरा लै जाणगे अगे। पर वो जिहड़ा समाज भाईचारा है वह भी शमशान भूमि तक ही है, अगे नहीं है। आगे हंस अकेला, अगे फिर रब ने कल्ले जाना है। वो जिहड़े सनातन मत विच दीवे जगाए जाते ने, पिंड भरे जाते ने, जवां दे पिन्ने दान किए जाते ने, वो सारी मैथोलॉजी है की है। वो इसे करके कहते ने 365 दिन सफ़र करना है, रस्ते च कहते नूं लाइट भी चाहिए, इस करके दीवे जगाओ, रस्ते च इनू भोजन भी चाहिए, वह भी दिओ। असी खुद मनते भी हुणे कल्ला ही जाएगा, इस तो अगे दोईए भाए विगुचीए गल पईस जम की फास। जदों प्यार दी मूरत परमात्मा नूं असी वसार लिया, तो फिर ये चेता रखना गल विच जमां दी फाई पै जाएगी, कोई नहीं कट सकता। जमां दी रस्सी जिहड़ी है उसनूं कोई नहीं कट पाएगा। भाव की है, जमदूत आउणगे पकड़ के लै जाणगे, ते भाई उन्हां दा ते ना ही जमदूत है। हुण तुसीं कहो जी जमदूत राह विच चाह पानी की सेवा करनगे, अगे किते जाके वेटिंग एरिए विच बिठाउणगे, रेस्ट कराउणगे, फिर किते ड्राइंग रूम च जाके बिठाउणगे, नाश्ता पानी कराउणगे, वड्डे साहब नाल मिलाउणगे। ये जमदूतां दी ड्यूटी नहीं है, उन्हां ते कुट मार के नरकां 'च सुट्टना है। वो जिहड़े स्वर्गां नूं लैके जांदे ने, मैथोलॉजी ये कहंदी है वो वखरे लोक ने, वो जमदूत नहीं हैगे, वो देवते ने। वो तोड़ के लैके नहीं जाते, वो विमान लैके आउंदे ने। इस करके प्यार वाली मूर्त परमात्मा नूं भुलना नहीं। जे परमात्मा नूं भुलांगे तो गलां विच जमां दी फांसी दा पैना ये निश्चित है, अटल है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी। जेहा बीजै सो लोणै, मत्थै जो लिखियास। ये होया कि कहंदे ये तुहाडे मत्थे दे लेख सन, तुहाडे मत्थे ते जिहड़ी परमात्मा ने जैसी कलम वोड़ी है मस्तक, रब ने ना तुहाडे मत्थे ते लेख लिख दिते ने। मत्थे जो लिखियास, जो मत्थे ते लिखिया गया वो बीजिया तुहानूं वढना पवेगा, वो कीते कर्मां दा फल तुहानूं भोगना पवेगा। और ये दोनों अर्थ करियो जे, ये नहीं कि माड़े कर्म करोगे तो फल भोगना पवेगा, चंगे करोगे तो फल उहदा भी मिलेगा। साडी गलती है भी असी की करते हैं,
ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਫਲ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਫੁੱਟ ਗਏ। ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬਵੇਗਾ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਕੱਤੇ ਸੂਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਚਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਤਰ ਕੱਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਦੇ ਆਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਸ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰ ਕੱਤਣ ਵਾਲਿਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਜੂਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੁੱਲ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡੇ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਮਿਟਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, 20 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 40, 50, 60, 70। ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਈ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ 50, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ 50 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ, ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ।
कदे टुटा घड़ा वेखियो जे, राती पानी भर के सोवोगे, सवेरे सोचोगे कि सारी रात पानी ठंडा होया होएगा, कल दिने गर्मी पीवांगे, नहीं तुहानूं उठ के निराशता होएगी, घड़े च पानी होएगा ही नहीं। जिहड़ा तुसीं बाल्टी नाल घड़ा भरिया, खूह तो जाके घड़ा भरिया, टूटी छड्ड के घड़ा भरिया, वो एक एक बूंद करके रात नूं खाली हो चुका है। इस करके रहन विहाणी पुछताणी, उठ चली गई निराश। इथों निराश होके जाना पवेगा उपरामता विच, बड़ी उदासी विच, क्योंकि जदों तुहानूं कोई प्राप्ति नहीं होएगी, समा बीत चुकिया होएगा। हाँ जिन कहो साधु भेटिਐ, सो दरगह होए खलास। जिन्हां नूं जीवन विच गुरु मिल गया, वो रब दी दरगाह विच सुरखरू हो जाते हैं। गुरु कौन है? गुरु दी साडी जिंदगी विच की थां है? जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। वकील शब्द, एडवोकेट शब्द, हुण जिवें जिवें दुनिया पढ़ रही है उवें उवें सानू कानून की समझ आ रही है। तो हुण तुसीं वेखिया भी हर आदमी ने जिथे होर स्टाफ रखे है, उन्हें लॉयर भी जिहड़े ने वो भी हायर किए हुए ने, वकील भी, बकायदा पोस्टां ने, बकायदा उन्हां दीयां सैलरियां दे प्रोविजन ने। क्योंकि अदालत विच जाके तुहाडी गल तुहाडे वकील ने रखनी है, तुहाडा पक्ष उन्हें ही रखना है, तुसीं नहीं रख पाओगे। कानूनी तौर पर उहदा राइट है, जज दे अगे खलो के वो अपील कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। बकायदा अज तो इहदियां बार एसोसीएशन बन गई ने। इसी तरह रब दे घर साडी गल कौन कर सकता है? गुरु कर सकता है। रब दे घर दे कानूनां दा किहनूं पता है? गुरु नूं पता है। तुसी जदों भी कोई काम करना हुंदा है, तुसी वकील कोल जाने हो, वो तुहानूं पढ़ा दिंदा है, तुहाडी फाइल बना दिंदा है। अज इमीग्रेशन दे वकील वखरे ने, क्राइम दे वकील वखरे ने, सिविल दे प्रॉपर्टियां दे वकील वखरे ने, अडोरी है, डाइवोर्स ने, परिवारक झगड़ियां दे वकील वखरे ने। ये तो जिवें जिवें तुरे जाओगे फिर पता लगेगा। इनकम टैक्स दे वकील वखरे ने, सेल टैक्स दे वकील वखरे ने। हुण पुछोगे भी इनकम टैक्स और सेल टैक्स में भी फर्क है? हाँ फर्क है भाई, सब दी पढ़ाई वखरी वखरी है। मैं तो कई बारी बेनती की भी, मैं सुनता हुंदा सी भी कन्न दा, अख दा ते नक दा इक्को ही डॉक्टर हुंदा है, पर समा बीतण तो बाद पता लगा भी नहीं, इन्हां तीन चीज़ों के तीन डॉक्टर होंदे ने। हुण उस तो भी अगे गल चली गई। मैं तो सुन के हैरान हो गया भी दो अखां ने ना, ये दो अखां दे भी वखरे वखरे डॉक्टर होंदे ने। दोवां अखां दा एक डॉक्टर भी होएगा, पर जदों होर तुसीं एक्सपर्ट लभण जाओगे फिर एक अख दा तुहानूं इक्को ही डॉक्टर मिलेगा। रब दी दरगाह दा वकील कौन है? गुरु है। धागे ते भी तो लैने ते जिथों मर्जी लई जाओ, हर गली च बैठे ने पुछां देण वाले। पर जे रब दे दरगाह की गल करनी है तो यह आम बंदा नहीं कर पावेगा। ये गल्लां तुहाडीआं गुरु करेगा।
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਉਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੰਨ ਫਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋਂ ਅੰਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਤਵਾਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सब इको नहीं है, हाँ रब इको है। ये गल सतगुरु की बाणी च लिखी है कि एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। एको है पाई एको है साहिब मेरा एको है। हाँ एक तो रब एक है, सारे एक नहीं है। एक वर्गा तो कोई है ही नहीं दूसरा, रब ने पैदा ही नहीं किया। क्यों रब की बनावट नूं चैलेंज करते हो भाई तुसी? मां वर्गी धी नहीं हो सकती, प्यो वर्गा पुत्र नहीं हो सकता, भरा वर्गा भरा नहीं हो सकता, भैन वर्गी भैन नहीं हो सकती। देखो पहली गल साडी शक्ल नहीं मिलती, शक्ल मिल जाए तो अकल नहीं मिलती। जे शक्ल ते अकल दोवें मिल जान तो कर्म बिल्कुल नहीं मिलते। कर्म दोवां दे वखरे वखरे होणगे, सब दे कर्म वखरे वखरे ने। जदों ये समझ आ गई कि परमात्मा तेरे तो बिना कोई दूजा नहीं, तो फिर की है? नानक की अरदास नहीं, मैनू दूसरा नहीं चाहिए। फिर तुहानू इत्थे आओगे तो तुसी खुद कहोगे कि जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वेखान, ना दूजे दे दर ते लैके ही ना जावी, वखावी ना। नहीं मैं किसी की गल ही नहीं सुननी चाहता। इहा पाई मूँह दातड़ी नित हिरदे रखा संभाल। ये गल मैं अपने हिरदे विच पक्की कर ली है कि नहीं मैं किसी की गल सुननी नहीं। करते हो तुसी, बहुत वारी करते हो। तुहानू एक डॉक्टर ठीक मिल गया, तुसी दवाई खा रहे हो, बड़े लोग कहेंगे उत्थे भी चले जा। वो कहता नहीं भाजी हुण मैं डॉक्टर नहीं चेंज करना, मैं दवाई नहीं चेंज करनी। कोई कहता है कि तू बच्चा इस स्कूल में पाया उधर पा दे, वो कहता नहीं नहीं हुण मेरा बच्चा ठीक पढ़ रहा है, हुण मैं बच्चे का स्कूल चेंज नहीं करना। बड़ियां निक्कियां निक्कियां गल्लां ने। कोई आदमी तुहानू आके कहता जी इत्थे कित्थे रहने हो जी, इत्थों वेच के उत्थे जाके घर लै लो। कहता ना ना भाई इत्थे बड़ी इज्जत है साडी, सारे महल्ले च सानू सत श्री अकाल कहंदे ने, सानू कोई करोड़ां रुपया देवे सी तां ना उठ के जाइए इत्थों। जदों तुहानू समझ आ गई कि परमात्मा तो बिना कोई दूजा परमात्मा नहीं, तो तुसी भी यही अरदास करोगे, यही कहोगे रोज आके कि एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। मैं नहीं किते जाना चाहता, मेरी भट कीरत की अरदास यही है कि वाहिगुरु तू मैनू अपनी शरण विच रख लै। फिर तुसी रोज कहोगे हों आया दूरों चल के मैं तक्की तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। फिर तुसी ये नहीं कहोगे चक बाबा रुपया मैं तो अगे चलिया, मैं तो जाके किसी बड़ी मसाणी ते भी मत्था टेकना है। नहीं, लोग तुहानू कहणगे, तुसी कहोगे नहीं असी नहीं जाना। कहण वाले लोग मां गंगा कोल भी चले गए। जे तुसी कहो ना जी कोई किसी ने कह दिता जी, कोई आ गया जी, कोई मैनू लै गया जी, ये गल्लां कल्ले तुहाडे नाल नहीं वापरदियां, ये गल्लां माता गंगा नाल भी वापरियां सी। छोटा जिहा बच्चा है गुरु हरगोबिंद, छोटे जे बच्चे हरगोबिंद राय दे शरीर ते चेचक दा रोग आ गया, शीतला दा। बड़ियां बीबियां कट्ठियां होके आ गई, गंगा चल इनू शीतला दे मंदिर मत्था टका के लिया, ये ठीक हो जाएगा। तो मां गंगा ने की किया, उन्हें कहा नहीं मैनू हुक्म नहीं है। तो जदों ठीक हो गए गुरु हरगोबिंद साहब, तो गुरु अर्जन देव पिता जी ने शब्द उचारे है
और गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, शीतला ते रखिया ब्यवहारी, पार ब्रह्म प्रभ किरपा धारी। कहते शीतला तो वाहिगुरु ने आप रखिया है बच्चे नूं, सानू लोड़ ही नहीं पई असीं किते जाइए। अपने बालक आप रखे, अपने बच्चों की राखी रब आप रखदा, सानू इधर उधर भटकण की की लोड़ है। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। जिस बंदे दा मन गुरु दे चरना विच वासा कर लैंदा है, घर बना लैंदा है, टिक जांदा है, थां बना लैंदा है अपनी, उहदे लई ये महीना भी वधिया है। उहदे वास्ते ये महीना ना लूआं वाला है, ना धुप वाला है, ना मक्खी मच्छर वाला है, ना पसीने वाला है, नहीं कुछ भी नहीं हैगा। उहदे लिए महीना बहुत वधिया है, बशर्त मन गुरु दे चरना दा वासी होना चाहिए। जिवें एक शब्द है साडा इतिहास दा कि जिहड़ा खालसा है वो आनंदपुर दा वासी है। आनंदपुर एक सिटी है, पंजाब दा एक शहर है, साडे धर्म दा बहुत वड्डा इतिहासक स्थान है। साडा तखत है केसगढ़ साहब, बड़ियां साडियां यादां उहदे नाल जुड़ियां होईयां ने, बड़े बड़े सारे कौतक सतगुरां ने उत्थे कीते ने, बड़ियां उत्थे सिखां ने कुर्बानियां दित्तियां ने। खास करके खालसे दा प्रगट होना एक बहुत वड्डा उत्थे इतिहास है। पर जदों ये कहा जाता है भी खालसे नूं आनंदपुर दे वासी बनना है, जदों सानू एड्रैस पूछा जाता है तो एड्रैस यो ही है। पिता का नाम की है? गुरु गोबिंद सिंह। माता का की नाम है? माता साहिब कौर। वासी कितों दे हो? आनंदपुर साहब दे। नानके कित्थे ने? गुरु के लाहौर। आनंदपुर साहब दे विच बड़ी आबादी है कि उत्थे घर बना के लोग आनंदपुर दे वासी बन गए ने। आनंदपुरी एक पद्धति है, एक अवस्था है जिदा सतगुरु जी ने उथे मुढ़ बद्धा सी। हुक्म तो यही सी भी खालसा तू आनंदपुर दे वासी रहना है, पर उहदे लई केसगढ़ भी बनाया सी। आनंदपुर दे वासी होने लई तुहाडा केसां दा गढ़ किला जिहड़ा है ये सलामत रहना चाहिए। ये केसगढ़ टुटना नहीं चाहिए। जिहड़े आनंदपुर दे वासी बने ने उन्होंने कोई दुख नहीं है। जिहड़े आनंदपुर दे वासी सी उन्होंने किन्ने दुख तसीहे भी सहारे ने, पर वो रोए तो नहीं सीगे। उन्होंने दुख विच आके कोई धर्म तब्दील तो नहीं कीता सी। जदों ये गल समझ आ गई उदों इको ही गल अंदरों बाहर आनी है कि तुद बिन दूजा को नहीं। हे परमात्मा प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। ये महीना उन्हां लई सोहना है जिन्हां दा वासा गुरु दे चरनां विच होएगा। ये मन दा इत्थे वर्णन कीता है। शरीर करके आउणा एक साधन है। पुछो गुरु अमरदास जी नूं, वो कहंदे दे तेजन जी शरीर घोड़ी है, इहदे ते चढ़ के तुहाडा मन गुरुद्वारे आएगा, पर जतन करियो कि अपने मन नूं
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਤੇਜਨ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗਵਾਚ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਚੌਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੋਗੇ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।